Hello, my dear students. I'm Sadia Khatun. Welcome to Balaji Online Classes. I'm going to teach you Maths of Class 6. The first chapter of your textbook. Let me show the textbook. This is the textbook. And the first chapter is our numbers. Let me write the name of the chapter here. Chapter 1 is our numbers. आप जानते हैं ना, मैथ्स की हम स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले नंबर्स पढ़ते हैं, राइट। तो इसी वजह से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का टेक्स्ट बुक का वो है आर नंबर्स। सो स्टेप बाय स्टेप वील बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। कोई आपको नंबर दिया गया है, कोई लार्ज नंबर दिया गया है, तो उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, कॉमास किस तरह से प्लेस करते हैं और किस तरह से उसका नंबर नेम लिखते हैं। सो देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग, दैट इज वन ऑफ द वे इज इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड द अदर वन इज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। लेट्स कम एंड सी। 2, 3, 5, 8, 9, 6, 4. For example, I have written this. Take one more number. This number I have written 2 times. Firstly, I will put comma according to Indian place value system. How do we do that? Just count 3 numbers from right side. 3 numbers you have, 3 digits you have counted, and then place a comma. After counting 3 digits, next you have to count only 2 digits and then put a comma. Next only 2 digits and then put a comma. This is Indian place value system. And in international place value system, the rule differs. What is the rule? Just count, first of all count 3. This is the same in both the cases. But after that, in international place value system, again you have to count 3 digits and then put the comma. This is international place value system. So according to the commas, the number name also changes. So if you have to tell that what will be the name of this number, if we say it in Indian place value system, the name will be, see, ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. इंडियन में लैक्स एंड क्रोर्स आते हैं, इंटरनेशनल में लैक्स और क्रोर्स नहीं आते हैं। इंटरनेशनल में मिलियंस एंड बिलियंस आते हैं। तो इसको प्रोनाउंस किया जाएगा, इसको रीड किया जाएगा 2 crore 35 lakhs 89,646। एंड इसी सेम नंबर को अगर मुझे इंटरनेशनल में लिखना है और रीड आउट करना है तो इसको पढ़ेंगे हम लोग 23,589,646। तो वही सेम नंबर लेकिन अलग अलग सिस्टम्स के अकॉर्डिंग प्लेस, कॉमा की प्लेसिंग भी अलग हो जाती है और नंबर नेम भी डिफरेंट हो जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म आपने 4th ऑनवर्ड्स पढ़ना शुरू कर दिया है। देयर इज नथिंग लाइक डिफरेंस, इट्स जस्ट द सेम। आई एम टेकिंग एनी नंबर 2, 5, 8, 6, 9, 2, 4. For example, I am taking this and you have to write this number in expanded form. How you are going to write? First digit you just write it, and after this digit how many digits are there? This is the first digit, and after 2 how many digits are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6 digits are there. So you will put 5, 6 zeros after 2. Then put a plus sign. After 2 our next digit is 5. So I am writing it 5. After 5 there are 5 digits. So put 5 zeros. Then place a plus sign. Then 8, and how many zeros will be there? 4 zeros. Then plus 6, and after that 3 zeros. Plus 9, after that 2 zeros. Plus 2, after that only 1 zero, and 4 will be at last because 4 के बाद एक भी नंबर, एक भी digit नहीं है। This is the process of writing the number in expanded form. Similarly, अगर आपको इस तरह दिया होता, एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, तो आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे कि ये नंबर बनेगा। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस हैं, नंबर दिया जाए और आपसे कहा जाए एक्सपैंड करके लिखो, या एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया जाए और आपसे कहा जाए इसका रिस्पेक्टिव नंबर क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज if you are given certain digits and you are asked to write to form a greatest and a smallest number out of those digits, how are you going to do that? Suppose I am taking any random digits like this 2, 5, 8, 0, 3, 6. Suppose I have taken these 6 digits and you have to write the greatest number formed by these digits and the smallest number formed by these digits. So how are you going to write? There is a simple method of doing that.
just arrange them in descending order and you will get the greatest number. That means 8, then 6, 5, 3, 2, 0. This is the greatest number that can be formed by using these digits. And जब स्मॉलेस्ट की बात आती है तो यू नीड टू कीप वन थिंग इन माइंड एंड दैट इज कि आप जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे. वो जीरो से अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो सिर्फ 5 काउंट की जाएंगी और वो फिर रॉन्ग हो जाएगा. सो यू विल राइट 2 देन 0 फिर 3, 5, 6. का मेथड ऑफ राइटिंग द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर आउट ऑफ द गिवन डिजिट्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ kilograms into grams, days into hours, and then meter into centimeter and all these kinds of conversions. You must have remembered in class 5 you have studied about different kinds of conversions and I have only taught you about the staircase method. I think you must be remembering that staircase method. और उसके हिसाब से ही आप different type के conversions कर सकते हैं. आप में ज़्यादा conversion नहीं है, kg और grams का है, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर इन सब का है, और days and hours. Tell you the conversion criteria. 1 kilogram is equal to 1000 grams. This you have been studying since your junior classes also. 1 kg is equal to 1000 gram. 1 kilometer is equal to 1000 meter. 1 meter is equal to 100 centimeter. So if somebody asks you that what is 1 kilometer is equal to how many centimeters, can you tell me? आपने सिर्फ किलोमीटर का मीटर में पढ़ा है, मीटर का सेंटीमीटर में पढ़ा है. तो अगर किलोमीटर से सेंटीमीटर में पूछा जाए तो किस तरह का कन्वर्जन होता है? बिकॉज आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जो है वो किलोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन का है. तो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख 3, 4, 5 zeros will be good. 1 lakh centimeter. 1 kilometer is equal to 1 lakh centimeter. Next, अगर डेज का आ रहा है, 1 day is equal to 24 hours. 1 hour is equal to 60 minutes. 1 minute is equal to 60 seconds. 1 hour is equal to 3600 seconds. So these are the conversion factors which will help you to solve the questions of exercise 1.3. Next, in exercise 1.4 there is the concept of rounding off numbers. So how do we round off? There are 3 types of like first you will be rounding off in nearest 10, then nearest 100, and then followed by nearest 1000. So I'm going to tell you nearest 10. Let's take an example. Suppose 4134. Okay, 4134 को अगर आपको नियरेस्ट 10 में करना है तो आप सिर्फ इसकी लास्ट की एक डिजिट को देखेंगे और उसको चेक करेंगे. ठीक, जो लास्ट डिजिट है अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो हम लोग 10th प्लेस वाले नंबर को 1 इंक्रीज कर देते हैं. 5 या 5 से ग्रेटर अगर ये वाली डिजिट है तो हम लोग 10th प्लेस वाली को, 10th को क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि हम नियरेस्ट 10 में कर रहे हैं. नियरेस्ट 10 में जब करते हैं तो 10th प्लेस वाली डिजिट में ही चेंजेस होते हैं. इंक्रीज होना है या सेम रहना है वो डिपेंड करता है कि हम किस वाले पर कर रहे हैं. अगर 100th प्लेस वाली, अगर नियरेस्ट 100 में कर रहे होते तो हम लोग 100th प्लेस वाली जो डिजिट होती उसमें चेंजेस करने होते हैं. तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा. इसको चेक किया, ये 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है. जब नहीं है तो क्या ये इंक्रीज होगा? नहीं, ये इंक्रीज नहीं होगा, ये सिर्फ 3 ही रहेगा. दैट मीन्स इससे पहले कुछ भी है उससे मुझे मतलब नहीं है. ये 41 एज इट इज लिखा रहेगा. 3 चेंज नहीं हुआ है तो वो भी उसी तरह रहेगा. एंड जो लास्ट जिसको हमने चेक किया होता है उसको हम लोग 0 कर देते हैं. अभी अगर यही सेम क्वेश्चन आपको नियरेस्ट 100 में करना होता, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैं आपको सेम क्वेश्चन लेकर ही तीनों का एक्सप्लेन करूंगी. यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट. 4134 है, इसको अब नियरेस्ट 100 में अगर मुझे करना है तो मैं लास्ट की 2 डिजिट्स देखूंगी और पोजीशन अगर डिजिट में चेंजेस होने हैं, इंक्रीज होना है या सेम रहना है वो डिपेंड करेगा इस डिजिट पर, क्योंकि 1, 10, 100 प्लेस पर ये डिजिट है. तो मैंने ये दोनों डिजिट्स चेक किया, क्या ये 50 या 50 से ग्रेटर है? नहीं है. दैट मीन्स ये जो है ये 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा. इससे पहले जो भी है वो आप उसी तरह लिखिए. 1 विल रिमेन एज इट इज और जिन दोनों डिजिट्स को चेक किया है वो दोनों 0, 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे. बट अगर इस तरह कुछ होता 4186 फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये दोनों डिजिट्स जब चेक करते तो ये 50 और या 50 से ग्रेटर वाली कंडीशन पर ये ट्रू हो जाता कि हाँ ये 50 से ग्रेटर है. तो जब 50 से ग्रेटर होता है तो ये वाली डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगी. दैट मीन्स 4 विल बी रिटन एज इट इज, क्योंकि वो तो 1000 प्लेस पर है, उससे हमें कोई इतना मतलब नहीं है. ये एक इंक्रीज हो गया है तो ये 2 बन गया और 86 जिसको मैंने चेक किया था वो 0 में कन्वर्ट हो गया है. सो दिस इज द मेथड ऑफ
राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100. नियरेस्ट 1000 का भी एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि नियरेस्ट 1000 में किस तरह राउंड ऑफ किया जाता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000. ओके, फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 6, 9, 8. नियरेस्ट 1000 की बात है तो 1s, 10s, 100, 1000 जो चेंजेस होंगे वो इस डिजिट में होंगे. तो इसके बाद वाले जितने डिजिट्स हैं उन्हें हमें चेक करना है. और चेक हम करते हैं कि क्या ये ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 500 है. इक्वल टू 500 भी हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 500 भी हो सकता है. अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम इस वाले डिजिट को, 1000 प्लेस वाले डिजिट को 1 नंबर इंक्रीज कर देते हैं, मतलब इसका सक्सेसर लिख देते हैं. और अगर नहीं होता है ऐसा, 500 से कम है, लेस है, तो फिर ये एज इट इज वही नंबर रहता है. दैट मीन्स अब हमें चेक करना है 698 क्या 500 से ग्रेटर है. येस, इट इज ग्रेटर. सो 5 विल बी चेंज्ड टू 6. और इससे पहले जो भी नंबर है उससे हमें कोई मतलब नहीं. इट विल बी रिटन लाइक एज इट इज. 5 को मैंने 6 में कर दिया और जो भी चेक किया जाता है उसको 0 में कन्वर्ट कर देते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. 2, 4, 189. 189 को चेक करेंगे क्या 500 या 500 से ग्रेटर है. नो, इट इज लेस देन 500. तो क्या 400 को, क्या हम लोग 4 को इंक्रीज करेंगे. नो, दैट मीन्स 2 विल बी रिटन एज इट इज, 4 विल बी रिटन एज इट इज और इन तीनों को 0 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. दिस इज द वे ऑफ राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000. नेक्स्ट टॉपिक is using the general rule you have to estimate the product or the difference or the sum. Like for example, suppose मैंने ले लिया 24 plus 86. For example, I have taken this. और आपसे कहा जाए कि ये जो सम है उसको एस्टिमेट करो. ठीक, एस्टिमेशन के क्वेश्चंस. तो क्या करना है आपको, आप देखेंगे कि 24 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो क्या लिख सकते हैं. 24 को राउंड ऑफ करने पे 20 आएगा. 86 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, ये बड़ा है, 5 से ग्रेटर है, तो 86 विल बी चेंज टू 90. और हमें करना है सम. प्लस का सिंबल लगा हुआ है, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट सम. तो हमारा एस्टिमेटेड सम आ जाएगा कितना, 110. दिस इज द these type of questions are there in your exercises. Actually in exercise 1.5 using the general rule estimate the following. तो उसमें आप लोगों को इसी तरह करना है. सिंपल कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने ये आपको एस्टिमेटेड सम का एक क्वेश्चन बताया, इसी तरह आपसे एस्टिमेटेड डिफरेंस पूछ सकते हैं, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट पूछ सकते हैं. डिफरेंस का भी एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रही हूँ. 39 माइनस 14. 39 को आप राउंड ऑफ करेंगे कितना आएगा, 40. 14 को राउंड ऑफ करेंगे कितना आएगा, 10. और डिफरेंस जब निकालेंगे तो आपका एस्टिमेटेड डिफरेंस निकल कर आएगा, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 30. दिस इज द एस्टिमेटेड डिफरेंस ऑफ 39 माइनस 14. अगर आपको एग्जैक्ट निकालना होता 39 माइनस 14 तो आप क्या करते हैं, ये आता 25. ये है एग्जैक्ट डिफरेंस, लेकिन ये है एस्टिमेटेड डिफरेंस. और आप लोगों ने राउंड ऑफ पढ़ लिया है तो इसलिए जब भी एस्टिमेटेड की बात आए तो समझ लीजिएगा कि राउंड ऑफ करके उसके बाद कैलकुलेशन करनी है. एक प्रोडक्ट का भी ले लेते हैं. 44 मल्टीप्लाइड बाई 27. ये आपकी सब बुक के ही क्वेश्चंस हैं. 44 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40. 27 को करेंगे तो आ जाएगा 30. और इन दोनों का प्रोडक्ट करना है तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आपको निकल के मिल जाएगा. एस्टिमेटेड प्रोडक्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 3 4 12 करिए और ये दोनों जीरोस लगा दीजिए. दिस इज द शॉर्टकट ऑफ डूइंग मल्टीप्लिकेशंस व्हेन देयर आर जीरोस. नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रोमन नंबर्स. रोमन नंबर्स आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. लेट्स गेट रिवाइज्ड एंड लेट्स सी व्हाट ऑल न्यू थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस क्लास. रोमन नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें हम लोग ये जो हिंदू अरबिक के हमारे डिजिट्स थी 1 2 3 4, ये जो डिजिट्स हम लिखते हैं रोमन नंबर्स में ये डिजिट्स नहीं लिखी जाती हैं. इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग इंग्लिश के लेटर्स लिखते हैं. और कौन से वो लेटर्स हैं, देयर आर ओनली 7 लेटर्स जो कि लिखे जाते हैं. जबकि हम लोग जो हिंदू अरबिक में डिजिट्स यूज करते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स डू वी यूज इन राइटिंग ऑल द नंबर्स, देयर आर 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. जबकि रोमन में ओनली 7 इंग्लिश लेटर्स आर यूज्ड. I, V, X, L, C, D and M. These are the
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the 7 English letters. This is 1, 5, this is 10, this is 50, 100, D is 500 and M is 1000. इन्हीं का यूज करके आप सब कुछ लिख सकते हैं, सारे नंबर्स लिख सकते हैं. तो कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूं. कभी भी अगर सपोज मुझे 40 लिखना है तो आप सोचिए कि नाउ 10 10 10 10 4 टाइम्स लिख दूं. नो, कभी भी हम लोग 4 टाइम्स किसी भी लेटर को एक साथ रिपीट नहीं करते. 3 टाइम्स से ज्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते हैं. तो अगर आप इस तरह 40 को लिख रहे हैं तो दिस इज रॉन्ग. 40 को अगर आपको लिखना है तो आपके पास एक ये टेक्निक है कि अगर मैंने ये 50 लिखा और 50 के अगर मैं बैक साइड, दैट मीन्स लेफ्ट साइड कुछ लिखूंगी तो वो उससे सब्ट्रैक्ट हो जाता है. राइट साइड लिखती हूं तो वो उसमें ऐड हो जाता है. तो 50 में मुझे कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 10 सब्ट्रैक्ट करना है तो विल राइट 10 लाइक दिस. सो ये होता है 40. अगर आपको 49 लिखना है तो आप ये मत करिएगा कि मैंने 50 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया. रॉन्ग. आप 40 लिखेंगे और उसमें 9 ऐड करेंगे. ये होता है तरीका लिखने का. Children, I have explained you all the topics that are included in chapter number 1. Try to solve the questions on your own, and if you have any confusion or any query, you can go and look for the solutions. The solutions of this chapter will be provided on School Mitra app. You can download it from there. And do remember Sadia ma'am's rule that maths comes by practice.